Good morning everyone. This is exercise 11.3 and the first question is find the circumference of the circle with the following radius. So the radius is given and with this radius we have to find the circumference of the circle. The radius is 14 and we know the formula for circumference. It is 2 pi r. Put the value of pi 22/7 as it is given in the question and the value of radius r is 14. Now the answer is 88 centimeters. Now moving on to the second part. All the rest part of the questions you have to do it yourself. Okay, now find the area of the following circle as the radius is 14 mm. So radius of the circle is 14, area of the circle is pi r square. This is the formula for the area. So the area will be 22/7 into 14 into 14 and the answer is 616 mm square. Now moving on to the third question. If the circumference of a circular sheet is 154, find its radius. Also find the area. So we have given the circumference of the circle is 154 meters. We know that the circumference of the circle is 2 pi r. So 154 must be equal to 2 pi r. Here we will put the value of pi and then we will find the r, and when you solve this you will get the answer 24.5 meters. Now next is we have to find the area of the circle also. So for the area of the circle we know the formula, it is pi r square. So we will put the value of r which we have got in our answer, it is 24.5. now the answer is 1886.5 meter square. Moving on to the next question, it is 4. A gardener wants to fence a circular garden of diameter 21 meter. Find the length of the rope he needs to purchase if he makes 2 rounds of fence. Also find the cost of the rope. So the given data in the question is the diameter of the circular garden. It is 21 meter and we know that r is equals to d upon 2, means radius is equal to diameter upon 2. That's why we will write it r is equal to d by 2. We will know that diameter is 21, so 21 by 2 will be equals to 10.5 meter. That means the radius of the circular garden is 10.5 meters. Now we have to find the circumference of the circle. So the circumference of the circular garden will be equals to 2 pi r. So we will put the value of pi and also the value of r. Then we will get 66 meters. This 66 meters shows the circumference of the circle. The length of the rope required. Now the length of the rope required to cover that circumference of the circle is 2 into 66 because it the gardener making 2 round of that circle with the rope, क्योंकि गार्डनर जो है वो सर्किल के 2 राउंड्स लगाएगा रोप से. तो दैट्स वाई वी विल नीड द लेंथ ऑफ द रोप इज़ 2 into 66. नाउ वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट. So cost of 1 meter rope is 4 rupees. So the cost of 132 meter rope will be equals to 4 into 132, that is 528 rupees. From a circular sheet of radius 4 cm, a circle of radius 3 cm is removed. Find the area of the remaining sheet. Now here we have one circular sheet that is having 4 cm radius and another sheet which is having 3 cm radius. Now we have to find the area which is just like this. Now we have to find this area because this area is cutted from the sheet. So what should we do? Firstly we will write the radius of the circular sheet r is 4. हम में जो बड़ी रेडियस है उसको हम कैपिटल आर मानेंगे एंड देन द स्मॉलर रेडियस दैट इज़ 3 सेंटीमीटर हम उसको स्मॉल आर मानेंगे. सो रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट इज़ कैपिटल आर इज़ 4 सेंटीमीटर एंड ए सर्किल ऑफ रेडियस टू बी रिमूव्ड इज़ स्मॉल आर दैट इज़ 3 सेंटीमीटर. देन एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट. अगर आपसे रिमेनिंग शीट मतलब इस शीट का एरिया निकालने को कहा गया है, देन व्हाट यू विल डू, firstly you will find the area of bigger circle
एंड देन यू विल फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल। ठीक है, बिगर सर्किल की रेडियस कितनी है 4 है, इसकी हेल्प से आप बड़े सर्किल का एरिया निकालेंगे एंड देन यू विल फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल। फिर आप बिगर सर्किल के एरिया में से स्मॉलर सर्किल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड देन यू विल फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट विच इज़ रिमेनिंग। सो मैंने यहाँ पर लिखा है द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई कैपिटल आर स्क्वायर वैल्यू है बड़े वाले सर्किल का या एरिया है बड़े वाले सर्किल का एंड पाई स्मॉल आर स्क्वायर एरिया है छोटे वाले सर्किल का। सो पाई विल बी कॉमन एंड देन वी विल राइट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज़ द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। Next, Saima wants to put a lace on the edge of a circular table cover of diameter 1.5 meter. Find the length of the lace required. So basically जब हम लेस या फेंसिंग की बात करते हैं तो हमें पेरीमीटर की ज़रूरत पड़ती है या सरकमफेरेंस की। पेरीमीटर की ज़रूरत पड़ती है पॉलीगन्स में एंड सरकमफेरेंस की नीड होती है सर्कल में। सो firstly we know that diameter of the circular table is 1.5, so we will know that how to find the radius and we will divide the diameter by 2 and then we get 0.75 meters which is the radius of circular table. Now circumference of the circle is equals to 2 pi r. Then we will put all the values and find the circumference of the circle which is 4.71 meters. Now we have to find the length of the lace which is required. So we know that what is the circumference of the circle, that will be the length of the lace. So circumference of the circle is 4.71. That's why the length of the lace required is 4.71 meters. Now cost of 1 meter lace is 15 rupees. So cost of 4.71 meter lace will be equals to 15 into 4.71, that will become 70.65 rupees. Now question number 7, find the perimeter of the adjoining figure which is semicircle including its diameter. Now here they have given a circle which is having 10 centimeter dia and they are asking for the perimeter of the whole diagram. So firstly we will find the radius of semicircle. So diameter is given and we will find the radius, that is 5 centimeter. This is the diameter and this will be the radius. Radius is half of diameter, that's why answer is 5 centimeter. Now the circumference of the semicircle. Circumference का means होता है this part, दिस पार्ट। जब सर्किल फुल होता है तो आप ऐसे निकालते हैं इस पूरे पार्ट को। अब जब सर्किल हाफ है तो सरकमफेरेंस सेमी सर्किल की इतनी ही तो होगी। ये जो है दैट इज़ कॉल्ड द लाइन, ये आपकी लाइन कहलाएगी। ये इस सरकमफेरेंस में एडेड नहीं है। सेमी सर्किल की सरकमफेरेंस सिर्फ उतनी ही है जितना ये पाथ कर्व्ड है। दिस स्ट्रेट लाइन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द सरकमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्किल। इट इज़ ऑलरेडी गिवन टू यू 10 सेंटीमीटर, दैट्स वाई दिस लाइन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल। जब आपको सरकमफेरेंस पूरे डायग्राम की निकालनी होगी देन यू विल ऐड दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इन 2 पार्ट्स। ओके, मैं बताती हूँ कैसे। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सरकमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्किल क्या हो जाएगी। फुल सर्किल की सरकमफेरेंस होती है 2 पाई आर, तो हाफ सर्किल की क्या हो जाएगी 2 पाई आर अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई आर। आप इसको डायरेक्टली फार्मूला के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं या फिर जैसे मैंने अभी करके दिखाया 2 पाई अपॉन 2 करके ऐसे भी कर सकते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्किल इज़ पाई इंटू आर, ये यहीं से आता है पाई इंटू आर। पाई और आर की वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, यू विल गेट 15.71। ये जो 15.71 है ये इस कर्व्ड पाथ की वैल्यू है। अब अगर आपसे कहा जाए कि इस पूरे सेमी सर्किल का आप सरकमफेरेंस फाइंड करिए तो आप क्या करेंगे, 15.71 प्लस 10 तभी तो इस पूरे पाथ का निकलेगा। तो ऐसे ही हम करेंगे 15.71 प्लस 10, जब इसको ऐड करेंगे यू विल गेट द आंसर 25.71 सेंटीमीटर्स।
Now the eighth question is find the cost of polishing a circular table top of diameter 1.6 meter if the rate of polishing is 15 rupees per meter. So in the question, diameter is given, you will find the radius by d by 2, you will get it 0.8 meter. Area of circular top, we know that it is pi r square, so we know all the values pi and r also. So answer is 2.0096 meter square. Now cost of polishing 1 meter square area is 15 rupees. So what will be the cost of polishing 2.0096 meter square area? It will be equals to 30.144 rupees. Now ninth question, Shazil took a wire of length 44 centimeter and bent it into the shape of a circle. Find the radius of that circle. Also find its area if the same wire is bent into the shape of a square. That will be the length of each of its sides. Which figure encloses more area, the circle or the square? So from the question, it is given that the length of the wire is 44 centimeters. Now this wire bent into a circle, तो we know that the circumference of the circle is 2 pi r. तो क्योंकि हमने उसी वायर से सर्किल बनाया है तो वायर की लेंथ तो वही रहेगी ना, बस हमने क्या करा है, उसको एक शेप दे दिया है, दैट इज़ सर्किल. और उस जो सर्किल है, जो शेप है, उस शेप का जो सर्कमफेरेंस है वो क्या होता है, वो 2 पाई आर होता है. तो वो किसके बराबर हो जाएगा, उस वायर की लेंथ के बराबर हो जाएगा. सो दैट्स वाई 44 इज इक्वल्स टू 2 इंटू पाई इंटू आर. With the help of this, we can find the value of r. So the value of r is 7 centimeters. Now we have to find the area of that circle. So what we will write? We will write area of the circle is pi r square. That's why 22 by 7 into 7 square. And the answer is 154 centimeter square. Now the wire is bent into the square shape. पहले हमने वायर को सर्कल शेप में किया था, अब हम वायर को स्क्वायर शेप में बनाएंगे. ठीक है, तो जब हमने वायर को स्क्वायर शेप में बेंड किया, देन द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ द स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 44/4. ये कैसे आएगा, ये वैसे ही आएगा कि स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है क्या होता है, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 44 हो जाएगा, जो कि क्या है, हमारे वायर की फुल लेंथ है. ठीक है, वायर की लेंथ से ही तो हमने अपना स्क्वायर बनाया है. तो यहाँ से साइड कितनी आ गई, 44/4 तो कितना आ गया, 11. दिस इज़ द 11 सेंटीमीटर. नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर, अब हम एरिया निकालेंगे स्क्वायर का. जब आपका स्क्वायर का एरिया निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला है साइड इंटू साइड. सो मीन्स 11 इंटू 11 इज़ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो बाई कंपेयरिंग बोथ द डायग्राम्स, मीन्स बोथ द एरियाज ऑफ द सर्किल एंड द स्क्वायर, वी केम टू नो दैट सर्किल इनक्लोजेज मोर एरिया देन स्क्वायर. ओके, ये आपको बताना है क्वेश्चन में, who encloses more area. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये भी सेम है, इसको मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से बता देती हूँ. इट इज़ लाइक फर्स्टली आपको क्या करना है, ये आपको एक सर्किल दिया है. ठीक है, आपको सबसे पहले इस सर्किल का इस सर्किल का एरिया फाइंड करना है. एंड देन आपको 2 स्मॉलर सर्किल दिए हैं, उन दोनों की रेडियस आपको दी है. देन आप उन दोनों सर्किल, छोटे जो सर्किल हैं उनका क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे, इन दोनों का एरिया फाइंड करेंगे. उसके बाद ये जो आपको एक रेक्टेंगल बॉक्स दिया है, आप इसका एरिया फाइंड करेंगे. इन दोनों छोटे सर्किल्स का और इस रेक्टेंगल का एरिया आप ऐड कर देंगे. ये दोनों एरिया आप ऐड कर देंगे और इस जो फुल सर्किल का एरिया आएगा उसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ, क्योंकि इन्होंने कहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, तो बाकी की जो शीट बची है ब्लू कलर की, आपको उसका एरिया मिल जाएगा. Now moving on to the next question, it is question 11. A circle of radius 2 cm is cut out from a square piece of an aluminum sheet of side 6 cm. What is the area of the leftover aluminum sheet? From the question it is given that radius of the circle is 2 cm and square sheet side is 6 cm. So firstly we find the area of square sheet, that is 6 square. We know that area of square is 6 into 6 or side into side, that is 36 centimeter square. Then area of the circle is pi r square, so 3.4 into 2 square, it is already given. So the answer is 12.56 centimeter square. Now the area of remaining part is equals to area of aluminium square sheet minus area of circle. ये aluminium की जो square
स्क्वायर शीट है, इसमें से जो सर्किल का एरिया है वो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो जो बचा हुआ हमारा एरिया है उसको हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सो द एरिया ऑफ स्क्वायर शीट इज़ 36 एंड सर्किल इज़ 12.56। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा आंसर 23.44 एंड दिस इज़ द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। Now moving on to the next question, this is 13th question. A circular flower bed is surrounded by a path of 4 meter wide. The diameter of the flower bed is 66 meter. What is the area of this path? So in the question it is given that diameter of flower bed is 66 meter. Okay, so the radius is 33, as you know, d by 2. Area of flower bed will be pi r square. So we will put all the values, that is pi and r, and the answer is 3419.46 मीटर स्क्वायर। ये गलत लिखा है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। एरिया शुड बी इन मीटर स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। मैं स्क्वायर टाइप करना भूल गई हूँ, तो आप लोग स्क्वायर लगा लीजिएगा। नाउ टू फाइंड द रेडियस ऑफ फ्लावर बेड एंड पाथ टुगेदर। अब देखिए, दिस इज़ द फ्लावर बेड जिसकी रेडियस है 66, ठीक है, और पाथ जो है वो हमारा कितना बड़ा है, पाथ है हमारा 4 मीटर्स, ठीक है। पाथ जो है उसकी जो चौड़ाई है इस पाथ की, ये देखिए इसकी जो चौड़ाई है दैट इज़ 4 मीटर। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे, किस में ऐड करेंगे, अपनी रेडियस में। तो 33 + 4 दैट विल गिव अस 33 + 4 विल गिव अस 37 मीटर्स। अब हमें उस फुल सर्किल की वैल्यू पता लग गई, रेडियस पता लग गई, कितनी है 37 मीटर्स। नाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ फ्लावर बेड एंड पाथ टुगेदर। अब हम इन दोनों का, क्योंकि हमने रेडियस इन दोनों की एक साथ निकाल ली है, टुगेदर निकाल ली है, तो हम इनका एरिया भी अब टुगेदर फाइंड करेंगे। सो द आंसर इज़ पाई आर स्क्वायर, इट इज़ 3.14 इंटू 37 स्क्वायर। व्हेन यू सॉल्व दिस इट विल गिव 4298.66 मीटर। नाउ एरिया ऑफ द पाथ, अब आपको पाथ का एरिया निकालना है। सो फ्लावर बेड और पाथ का जो टुगेदर आपने एरिया निकाला था उसमें से आप सिर्फ फ्लावर बेड के एरिया को माइनस कर देंगे एंड देन यू विल गेट द एरिया ऑफ द पाथ। Now moving on to the next question, it is question number 16, that how many times a wheel of radius 28 centimeter must rotate to go 352 meter. So from the question it is given that radius of the wheel is 28 सेंटीमीटर। आपको व्हील की रेडियस कितनी दी है, 28 सेंटीमीटर गिवन है। सर्कमफेरेंस हम कैसे निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ 2 पाई आर। सो वी विल राइट इट 2 पाई आर एंड द आंसर इज़ 176 सेंटीमीटर। हमें अपने व्हील की सर्कमफेरेंस पता चल गई है। नाउ वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ द व्हील, टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्डेड अपॉन सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील। तो हमें रोटेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो उसने टोटल डिस्टेंस कवर की है उसको हम व्हील की सर्कमफेरेंस से डिवाइड करेंगे। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, सपोज़ दिस इज़ द पाथ, अगर ये पाथ है और सपोज़ दिस इज़ द लेंथ ऑफ द दिस इज़ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, तो हर बार इतनी डिस्टेंस कंप्लीट करने के बाद सर्किल दोबारा मूव करना शुरू करेगा। तो देखिए ये कई पार्ट्स में बढ़ गया। तो जैसे ही हम अपने सर्किल की सर्कमफेरेंस से अपने पाथ की डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे, हमें नंबर ऑफ रोटेशन इसकी हेल्प से पता चल जाएंगे, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस है 352 अपॉन 176। अब यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, अगर यूनिट्स का मेजरमेंट डिफरेंट है तो उनको सेम कर लीजिए। जैसे 352 इज़ इन मीटर्स एंड 176 इन सेंटीमीटर, तो हमने क्या किया, हमने 352 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया एंड देन इट बिकम्स 35,200 सेंटीमीटर। नाउ व्हेन यू डिवाइड इट द आंसर इज़ 200 रोटेशंस it will take with the circumference 176, ठीक है। ओके, थैंक यू।